डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यू ऑलरेडी स्टडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन your earlier classes. I remind you what is the linear equation in one variable. Ax plus b is equal to 0. This is the linear equation in one variable where a not equal to 0. A and b are any real number. Any real number. For example, this is the standard form of linear equation in one variable. Examples: 4x plus 5 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. Y plus 4 is equal to 0. T minus 6 is equal to 0. These are the example of linear equation in one variable. How we solve the linear equation in one variable? For example, हम इसको solve करना चाहते हैं। 4x plus 5 is equal to 0. 4x is equal to minus 5. ये प्लस है, प्लस को लग जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? minus 5 by 4. This is the one values of x. It means the value of x is equal to minus 4 is satisfies this equation. The value which satisfies the equation is called the solutions of the linear equation. अब इसके अंदर x minus 3 is equal to 0. What is the value of x which satisfies the given equation? If we put x is equal to 3, 3 minus 3 is equal to 0. Left side is equal to right hand side. It means the value of x is equal to 3 satisfies this equation. So x is equal to 3 is the solutions या root of this equation. Therefore x is equal to minus 3 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x is equal to क्या जाएगा? 3. यहाँ पर वेरिएबल x है। इस तरह से यहाँ पर वेरिएबल क्या आपके पास y plus 4 is equal to 0. तो y की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस। प्लस 4 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। नाउ we'll extend your knowledge the linear equation in two variable. Linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Here there are two variables. There are two unknown quantity. Ax plus by plus c is equal to g. This is the standard form, the linear equation in two variable x and y. So, variable x and y. We also have other variable y, z, t, s, u, v. So we can represent any alphabet. For example, इसका क्या है देखिए, 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. This is the linear equation in two variable. In place of a, we take 4. In place of b, we take 3. c की जगह 5. तो इक्वेशन बनी 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. Linear equation in two variable have infinitely many solution. कैसे है many solution? देखिए यहां पर अगर मैं एक x की वैल्यू पुट करता हूं तो एक y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अगर मैं x की दो वैल्यू लेकर के चलता हूं तो y की भी दो ही वैल्यू आएगी। x की तीन वैल्यू लेकर के चल रहे हैं तो y की भी तीन वैल्यू आएगी। नाउ वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय graphical method and algebraical methods. So we represent
द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल in two variable. How we can represent? X plus 5 is equal to 0. This is the linear equation in one variable. इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y वेरिएबल की जगह क्या लिखेंगे? x plus 0y plus 5 is equal to 0. This is the linear equation in two variable. If y plus 4 is equal to 0, represent the linear equation in two variable. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0x plus y plus 4 is equal to 0. This is the linear equation in two variable. This is a one variable or this is two variable. Now we will solve the exercise 4.1 which is basis on this concept. Exercise 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of a notebook to be rupees x and that of a pen to be rupees y. यहां पर हमें स्पेशली टू वेरिएबल x और y है दी गई है. अदरवाइज हम वेरिएबल y z टी यू वी कुछ भी लेट कर सकते हैं. तो अब हम x और y लेट करेंगे टू वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है. क्या है यहां पर? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक. नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है, दुगनी है. किससे है? कॉस्ट ऑफ ए पेन. पेन की जो कॉस्ट है उसे दुगनी है. किसकी? नोटबुक की. नाउ रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. तो हम यहां से लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेन. इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन. लेट क्या लिखेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज एक्स. कॉस्ट ऑफ ए किसकी? किसी की लेट कर रहे हैं? नोटबुक की. अब कॉस्ट ऑफ ए क्या दी गई यहां पर? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक. तो पहले नोटबुक की है तो नोटबुक की लेट कर लो. कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक. नोटबुक क्या गिवन है? रुपीज एक्स. कॉस्ट ऑफ ए पेन रुपीज वाई. इसके अकॉर्डिंग ये जो दिया गया है ब्रैकेट में हम इसके अकॉर्डिंग ले लिया. अदरवाइज नोटबुक की कॉस्ट हम वाई भी ले सकते हैं, पेन की एक्स ले सकते हैं, परंतु हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिया. टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ पेन इज रुपीज वाई. These are the two variable x and y. According to the question, condition लगेगी यहां से. The cost of a notebook, यानी कि cost of a notebook किसके इक्वल है? Is मतलब इक्वल टू twice, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो. Cost of a pen. Cost of a pen. वैल्यू पुट करते हैं यहां पर. Cost of a book. बुक की कॉस्ट क्या है यहां पर? x इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन y, यानी कि 2 इंटू वाई. x इक्वल टू क्या आ गया? 2y. 2y बदल लें तो x माइनस 2y इक्वल टू 0. विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. विच इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. विच इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. लीनियर equation in two variable x and y. यानी पेयर नहीं, यहां पर हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये टॉपिक था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक है ये. अब x माइनस 2y इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. क्या मतलब हुआ कि आपको ये जो नीचे दिया गया है यहां पर लीनियर इक्वेशन है, आपको किस फॉर्म में लिखना है?
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है और आपको वैल्यू भी बतानी है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, इनकी वैल्यू क्या है, कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट पार्ट इसमें कैसे सोल्व होगा, सॉल्यूशन पार्ट 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। अब देखिए इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहां 0 लेना है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ये प्लस की क्वांटिटी इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 इधर रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में होगी विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये ax हो गया, ये by प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर तो आपको abc की वैल्यू निकालनी है। ऑन कंपेयरिंग दिस फॉर द वैल्यू ऑफ abc, फॉर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, इसकी वैल्यू निकालनी है। कंपेयर, इसको कंपेयर करो, कंपेयर किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इसको कर देते हैं यहां पर, कंपेयर 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करते हैं। अब देखिए यहां पर a की जगह क्या है, यहां पर 2 है, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां पर by, यहां पर 3y है, अब b की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और c प्लस का c और यहां पर माइनस का 9.35 बार, तो c की जगह कितना आ जाएगा माइनस 9.35 बार। इसी तरह से हम सभी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट x माइनस y बाई 3 है, x माइनस y अपॉन 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले लो, यहां इसका 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x माइनस y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बन जाएगा 3x माइनस y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखेंगे कि 3x माइनस y माइनस 30 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, abc की। इसी तरह से फॉर द वैल्यू ऑफ abc कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30 आ जाएगी। सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकेंड, इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हैं। ये क्या आपके पास माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये पार्ट आपका थर्ड। अब यहां से 6 को इधर लाएंगे, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of, इसके फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। कंपेयर कर दो इसको, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जब इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी। इसी तरह से आप पार्ट 4 सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्थ में क्या है x इक्वल टू 3y, अब 3y को इधर ले, x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो ये होगा ax प्लस by प्लस c, मतलब 0 करो यहां पर x माइनस 3y प्लस c के जगह 0 लिख दो इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है ये विच इज
इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू 0। ये 4 पार्ट हो गए। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा बिल्कुल इसी तरह से है 2x माइनस 2x इक्वल टू क्या है माइनस का 5y है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका जो कौन सा पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए। फिफ्थ पार्ट में क्या है 2x इक्वल टू -5y है। अब -5y को इधर ले 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये बन गया ax प्लस by प्लस c, यानी कि 0 और ऐड कर दो c की जगह 2x प्लस 5y प्लस c इक्वल टू 0 which is in the form of ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। therefore a की जगह क्या हो गया 2 आ गया और b की जगह कितना हो गया 5 और c की जगह क्या हो जाएगा 0। ये अपने पास किस किस की वैल्यू आ गई a b और c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप पार्ट कौन सा सिंप्लीफाई करेंगे 6 पार्ट में क्या है देखिए 6 पार्ट में आपके पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वी विल रिड्यूस द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इन दिस फॉर्म। देखिए कैसे आएगा 3x y नहीं यहाँ पर वेरिएबल तो 0y लिख दो। मैंने इंट्रोडक्शन बताया था जहां दूसरा वेरिएबल नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिख दो। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0 which is in the form of ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो यहां से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 आ गई। ये 6 पार्ट था। अब 7 जो आपका क्या है यहां पर देखिए 7 पार्ट में है y माइनस 2 इक्वल टू 0। 7 पार्ट आपका है ये है y माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y। अब इसको रिड्यूस करेंगे टू वेरिएबल यानी कि वेरिएबल x में रिड्यूस करेंगे यानी कि x और y दोनों में। अब यहां पर x नहीं है तो 0x कर दो प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया ax मतलब 0 की जगह है मतलब ये जो आपका वेरिएबल x नहीं था तो हमने 0 इंटू एक्स लगा दिया। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, परंतु ये क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y विच इज इन द फॉर्म ऑफ इसकी फॉर्म में आएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पर देखेंगे a की जगह क्या हो गया 0 यानी कि किस फॉर्म में ax यानी कि x का कोएफिशिएंट यहां पर a और यहां पर क्या है 0 तो a इक्वल टू 0। b का कोएफिशिएंट 1 और यहां पर कितना y का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट b तो b इक्वल टू कितना हो गया 1। कांस्टेंट टर्म c और यहां पर क्या है -2 तो c इक्वल टू क्या हो गया -2। अब ये इसका 8 पार्ट देखिए यहां पर 5 इक्वल टू 2x है या तो 5 उधर ले जाए या 2x इधर ले तो 2x 5 इधर चला गया तो -5 इक्वल टू 0। दिस द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। हमें तो रिप्रेजेंट कर रहा है टू वेरिएबल में x एंड y की फॉर्म में। तो क्या करें फिर y नहीं है यहां पर वहां पर इसी तरह से ये जो हमने किया था 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे यहां पर कर देंगे 2x इन प्लस में 0y लगा देंगे प्लस में 0y माइनस 5 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ इसकी फॉर्म में आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू तो क्या आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 0 और c की वैल्यू -5। तो ये आपका एक पार्ट था। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंप्लीफाई कर दिया और सेकंड इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। तो कल हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।